जैसे यहाँ पे कबड्डी लिखा है, हॉबीज एंड इंटरेस्ट, तो क्या आप बोलेंगे ये तो कबड्डी तो गेम है, स्पोर्ट्स है, ये तो स्पोर्ट्स में भी लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है, तो क्या ये सही माना जाए? पैरा 6 which is very important para is, here it is written parents alive and in front of that it is yes or no. आपको ग्रेजुएशन बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देते हैं तो फिर देन unnecessary question has to be asked कि तुमने क्या किया, कब किया, कैसे किया. हमेशा जवाब देखिए कि उससे टैली करना चाहिए 18 years 2 months, तो इट शुड टैली विद द एज आपने जो पहले पेज में लिखी है. नेचर ऑफ कमीशन इज दो ही होते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन. तो डिपेंडिंग अपॉन आप जिस भी एंट्री के लिए जा रहे हैं वो परमानेंट है या शॉर्ट सर्विस है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे आप लिख देंगे. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. Today I am going to actually touch upon a very, very important topic for all the candidates who go to SSB for their interview, and the topic today is PIQ, Personal Information Questionnaire, which all the candidates who go for SSB interview, they have to fill it up in duplicate. PIQ is a very important document actually which you fill it up, and as far as interviews concerned, this become the basis actually of the interview. So this PIQ is given to two people. Since you are filling in duplicate, so one copy goes to interviewing officer and the second copy goes to the psychologist. So I will touch upon the copy which goes to the interviewing officer. So before taking any interview, the interviewing officer actually goes through this PIQ and formulates his questionnaire, what he or she will be asking question to the candidate. So he read the PIQ thoroughly, and on the basis of whatever you have written in the PIQ, he makes certain questions which he would be asking during the interview. So this is a very, very important document. So whatever you are going to actually fill in the PIQ form become the basis of the interview. So that means whenever you fill this form, you have to fill this form in a very proper manner, in a deliberate manner, and providing all the information properly. So let's start how to fill it up, what are the few of the mistakes which candidate do, and what you should be avoiding and what you should be writing in the PIQ form. There is a PIQ form here on the board. As you know, this is a personal information questionnaire. The full form of PIQ is Personal Information Questionnaire. If you see the para 1 is quite clear. Here it is written 1, 2, 3, 4. There are 4 columns and 1 row. Selection board, whichever selection board you are going, you have to fill that, and place, for example, Allahabad, Bhopal, Bangalore, etc. And batch number, whatever the batch number, it is quite clear, you can fill your batch number, and whatever the chest number which has been given to you, you can fill that, and thereafter the UPSC or other roll number, you can fill in that. Now comes to the para 2. Para 2, you have to give your personal information like it has been given here. It is name in capitals. So many a times a few candidates do the mistakes. They don't write name in capitals. So they write in a running handwriting. So please ensure that whenever you are writing your name, you write your name in capitals. And it should be as per the matriculation. It should be as per the matriculation certificate. So whatever certificate you have got in your 10th board, that name should be written here. Like it is written over here, Aditya Sanger. Below that comes the name of father. So father name, whatever the father name, again it is to be in capitals. Now the para 4 is, it's got 3
A, B and C. 4A, 4B and 4C. Now please pay attention here. The para 4A is place of maximum residence. So whatever your age is, for example 17 years, 18 years, 21. So in this 20, 21 years or 18 years, whichever place you have, you had resided for maximum time. So that becomes the place of maximum residence. And within the bracket it is written place, district and state. So write first whichever the place is, whether it is for example some village, and what was the district it comes under, and the state like MP, UP, Bihar, etc., etc. And just below that it is written with approximate population of the place. So this is one of the mistake actually most of the candidates do. They don't read this within the bracket where you have to write the population. Like here he has written clearly Shajapur MP, and within bracket 90,000. So this is the way you have to write. Now comes place of present residence. And as the name suggests, wherever you are staying presently, अभी जहां पर आप रह रहे हैं उस जगह का आपको इंफॉर्मेशन देनी है. Again same thing, place, district and state. And again same thing, population of that particular place. Right? And para 4C is a place of permanent residence. This is the place actually where your father actually has got its पुश्तैनी घर, जो हिंदी में बोलते हैं जहां पुश्तैनी घर है आपका, वो जो परमानेंट रेसिडेंस आपका फादर का है, दैट बिकम्स द प्लेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस. एंड द सेम इंफॉर्मेशन यू हैव टू प्रोवाइड हियर इज प्लेस, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट. एंड सेम थिंग विच यू हैव प्रोवाइडेड, जो परमानेंट रेसिडेंस है उसी का इंफॉर्मेशन आपको ये पैरा 5 में भरना है. स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, रिलीजन, and whether you belong to any of the category like OBC, SC, ST. And anyone who is general, either he or she can write general or dash. Mother tongue, of course, whatever your mother tongue is, like Hindi, Marathi, Gujarati, Kannada, Telugu, Tamil, जो भी है, you can write it very clearly below mother tongue. Date of birth, whatever date of birth you can fill it here, and generally married, single or widower. So mostly all the candidates are single, so they can write single here. Now the para 6, which is very important para, is here it is written parents alive, and in front of that it is yes or no. Now in case both the parents are alive, you can tick on yes. In case one of the parent is not alive, you have to actually tick on no. And 6B, para 6B, if not alive, your age at the time of mother's or father's death. So I have seen there are few mistakes being committed by the candidates. Sometimes they write the age of their parent who has expired. So that is a mistake you should avoid. It is your age at the time of death of one of the parents. So for example, you were 14 years of age when your mother expired or father expired, so you have to write 14. Or in case it is not, of course, you have to leave it blank. When the parents are alive, you have already written yes, so nothing is to be written. Leave it blank or put a dash. Now 6C, para 6C is parents oblique guardians and siblings occupation and income as applicable. So you have a column here, rows in column and rows here. अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए. First thing is you have to actually the particular given education, occupation and income per month. एंड किस किस का आपको ये पर्टिकुलर्स देने हैं? फादर, मदर, गार्जियन, एल्डर ब्रदर और एल्डर सिस्टर. एंड देयर आर 2 places which is given elder brother and elder sister.
and 2 rows for younger brother and younger sister. So first you have to write your education, like father का education क्या है, mother का क्या education है. Similarly brother sisters का you can write the education of whatever they have done. In the second thing, it's occupation. Like here it is written bus operator, for mother it is homemaker, and younger brother, younger sisters, student, and whatever the income per month. So this is where actually people do mistakes. Sometimes they write annual income. So you have to write income per month. Now here is, I have seen some of the problems faced by the candidates. They might have 3-4 elder brothers or 3-4 younger sisters, and since sufficient rows are not there, so they get perturbed. What to do now? अब क्या करें हम, क्योंकि यहाँ पे तो रोज में सिर्फ 2 एल्डर की जगह दी है, 2 यंगर की जगह दी है, तो हमारे तो 4 बड़े भाई हैं या 4 छोटे भाई हैं या बहन हैं, तो वो कैसे करें? तो इसके अंदर में बहुत सिंपल सा तरीका है व्हाट यू कैन अडॉप्ट. फॉर एग्जांपल यू हैव, लेट्स टेक एग्जांपल, देयर आर 4 एल्डर ब्रदर्स और आप सबसे छोटे हो इन द फैमिली, एंड फर्स्ट वाला जो रो है यहाँ पर एल्डर ब्रदर, यू कैन राइट ब्रदर पे टिक करके सिस्टर को काट के द डिटेल्स अबाउट द फर्स्ट एल्डर ब्रदर. सिमिलरली सेकेंड एल्डर ब्रदर का भी आप इंफॉर्मेशन लिख पाओगे, एल्डर ब्रदर का इंफॉर्मेशन सेकेंड वाले का भी लिख पाएंगे. नाउ कम्स यहां पर जो लिखा है यंगर ब्रदर ऑब्लिक सिस्टर, तो आप चूंकि वो सारे एल्डर हैं तो यहां पर ये यंगर को काट दीजिए और उसके जगह पर एल्डर लिख दीजिए, और ब्रदर है तो ब्रदर पर टिक कर दीजिए, तो वो 4 एल्डर ब्रदर आपके हो जाएंगे. अंडरस्टूड? सिमिलरली कैन बी डन फॉर सिस्टर्स ऑल्सो, और अगर ज्यादा नंबर ऑफ आपके जो भी सिबलिंग्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन में इस तरह से आप इसको यूज करके अपना सही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं. आई होप यू आर विथ मी बाय नाउ टिल नाउ. Now we will come to para 7. This is also a place where there are few mistakes which has been observed by the interviewing officers. तो मैं उसके बारे में अब डिस्कस करता हूँ. In this para 7 you have to write your educational record commencing from matriculation or equivalent examination. Now if you see the first column and the rows here, the first column is basically you have to give your qualification acquired. Second में full name of institution. थर्ड में जो है आपका ये बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी, और ये उसके बाद में विच ईयर यू हैव कंप्लीटेड एंड हाउ मच डिवीजन और मार्क्स और परसेंटेज यू हैव ऑब्टेन्ड. फिर उसके बाद में आता है मीडिया ऑफ इंस्ट्रक्शंस, वेदर यू आर ए बोर्डर और ए डे स्कॉलर, एंड लास्ट में आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इफ एनी. अब यहां पे जो कुछ गलतियां हमने ऑब्जर्व करी हैं और जनरली लोग गलतियां कर देते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. ऑफ कोर्स इट इज वेरी क्लियर. ये वाले फर्स्ट वाले में जो पहला है वो यू हैव टू राइट अबाउट योर 10th बोर्ड, मैट्रिक ऑब्लिक हायर सेकेंडरी. आजकल हायर सेकेंडरी नहीं होती तो मैट्रिक मतलब 10th. तो 10th की इंफॉर्मेशन आपको देनी है, जो आपका नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, दैट मीन्स नेम ऑफ द स्कूल इन फुल, पूरा नाम लिखना है आपको, नेम ऑफ योर स्कूल ये आ जाता है. फिर वो जो स्कूल है किस बोर्ड में आता है, चाहे वो स्टेट बोर्ड में आता है या सीबीएसई बोर्ड में आता है या आईसीएसई बोर्ड में आता है, तो आपको बोर्ड क्लियरली यहां पर लिखा है, जैसे यहां पे इन्होंने एमपी बोर्ड लिखा हुआ है. सिमिलरली ईयर जो लिखा है यहां पे, द ईयर इन विच यू कंप्लीटेड दैट पर्टिकुलर, आई मीन जो क्लास थी वो जिस साल में खत्म करी है वो भरना है आपको. लाइक दिस पर्सन हैज फिल्ड अप और खत्म किया है इन्होंने 21 में, तो इन्होंने 2021 लिखा है यहां पर. नाउ कम्स परसेंटेज. तो इट इज वेरी क्लियर, आप मार्क्स और परसेंटेज यहां लिख सकते हैं, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आइदर इंग्लिश, हिंदी और एनी वर्नाकुलर लैंग्वेज जो भी है वो आप यहां पे क्लियरली भर सकते हैं. एंड बोर्डर ऑब्लिक डे स्कॉलर,
तो अगर आपने बोर्डिंग स्कूल में जाके रह के पढ़ाई करी है तो आप बोर्डर लिखेंगे, या फिर आप डेली आते जाते हैं अपने स्कूल के अंदर में तो ऑब्वियसली आप डे स्कॉलर हो जाएंगे। नाउ जहां पे मिस्टेक आती है वो लास्ट वाला एक जो आपका कॉलम है जिसमें आपको लिखना है आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। नाउ मेनी पीपल राइट outstanding achievement related to their sports or games or any other CCA activity. So that is not supposed to be written here. All the outstanding achievement pertaining to your education is to be written here, like distinction in all subject, or topper of the school, or topper of the board, or topper of the state. So इस तरह की information आपको यहाँ पर देनी है। नाउ उसके नीचे जो आता है 10 के बाद में 10 + 2 दैट मीन्स 12th, तो सेम इंफॉर्मेशन आपको 12th के बारे में दे देनी है। नाउ उसके नीचे आता है ग्रेजुएशन। दिस इज ऑल्सो अ प्लेस जहां पर अगर आपने प्रॉपर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो इट बिकम्स सॉर्ट ऑफ एन इरिटेंट टू द इंटरव्यूइंग ऑफिसर। तो वो इरिटेंट को अवॉइड करने के लिए यू नीड टू गिव फुल इंफॉर्मेशन। तो क्या गलती होती है, लेट मी एक्सप्लेन। जो यहाँ पे ग्रेजुएशन लिखा है और उसके बाद में आपने फुल इंस्टीट्यूशन तो कॉलेज का नाम लिख दिया, यूनिवर्सिटी कौन से यूनिवर्सिटी में वो कॉलेज आ रहा है, फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी वो लिख दिया और बाकी सारी इंफॉर्मेशन दे दी। और यहाँ पर आपने यहाँ पे ये तो लिखा नहीं कि ग्रेजुएशन आपने किस में किया, वेदर इट वाज बीटेक, बीकॉम, बीए ऑनर्स, बीएससी। तो ये ग्रेजुएशन जो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है इसके नीचे आप ग्रेजुएशन के नीचे आप क्लियरली लिख दीजिए बीटेक, अगर वो कंप्यूटर साइंस में है तो विद इन ब्रैकेट सीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिख दीजिए, और जो भी है मतलब, या फिर बीएससी किया है तो बीएससी लिख दीजिए विद इन ब्रैकेट पीसीएम में किया है तो, या फिर और किसी सब्जेक्ट में किया है तो यू कैन राइट। फॉर एग्जांपल आपने बीए किया है तो बीए में जो सब्जेक्ट है उसके आप छोटा छोटा करके लिख दीजिए। तो इट बिकम्स वेरी क्लियर कि ग्रेजुएशन आपने किस में किया है। अगर आपको ग्रेजुएशन बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देते हैं तो फिर देन अननेसेसरी क्वेश्चन हैज टू बी आस्क्ड कि तुमने क्या किया, कब किया, कैसे किया। तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए गिव द फुल इंफॉर्मेशन। सेम थिंग गोज फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन ऑब्लिक प्रोफेशनल एग्जाम्स ऑल्सो। तो यहाँ पे भी अगर पीजी आप जो भी करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी करते हैं, वेदर इट इज एमटेक और इट इज एमएससी और एमए, तो जिसमें भी किया है एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी व्हाटएवर, और बीए अगर आप एमए किया है तो एमए किस में किया है, एमए हिस्ट्री और एमए ज्योग्राफी, तो वो क्लियरली यहां पर प्रॉपरली लिखें एंड देन उसके डिटेल आगे आप प्रॉपरली अपने कॉलम में डाल दें। आई होप यू आर विथ मी टिल नाउ, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। Now para 8 comes in the next page. It is very clear, इसमें आपकी कोई डिफिकल्टी नहीं होती, आपको लिखना होता है अपना एज। तो यहाँ पर कितना 18 years and 2 months जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल द ओनली थिंग विच यू हैव टू एक्चुअली इंश्योर, आपने फर्स्ट पेज पे अपनी एज लिखी थी, आपकी डेट लिखी थी आपने, जिस दिन आपका डेट ऑफ बर्थ था उससे ये टैली करना चाहिए। हमेशा जब देखिए कि उससे टैली करना चाहिए 18 years 2 months, तो इट शुड टैली विद द एज आपने जो पहले पेज में लिखी है। सेकेंड थिंग इज जो इसमें यहां पे आता हाइट इन मीटर्स, तो जो आपकी हाइट है 1.71 मीटर्स, 1.80 मीटर्स, वॉट एवर इज देयर आप उसमें लिखिए क्लियरली। और वेट इन किलोग्राम्स, तो बेसिकली आप बोलेंगे इसका क्या मतलब है, ये हम क्यों लिखते हैं, इससे क्या देखते हैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर। तो बेसिकली इंटरव्यूइंग ऑफिसर एक्चुअली ये देख के एक मन में पिक्चर बना लेते हैं, पिक्चर बनती है उनके दिमाग में कि ये इसकी हाइट और वेट कैसी है, तो इससे इसकी मिलिट्री बियरिंग कैसी होगी इस कैंडिडेट की। तो हाइट के हिसाब से इसकी वेट ज्यादा है या कम है, या मोटा है या पतला है, या फिर ये बिल्कुल फिट है। तो वो एक इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में आती है और एक पिक्चर बनती है आपकी, आपको देखने के पहले। तो वो टैली होती है कि नहीं, वो आपको वो जब अंदर आते हैं इंटरव्यू के लिए तो वो थोड़ा सा उनको करोबरेट करने में आसानी होती है। उसके बाद में आता है पैरा 9 प्रेजेंट ऑक्यूपेशन एंड पर्सनल मंथली इनकम। तो अगर आपका ऑक्यूपेशन कुछ है
तो लिख दीजिए, नहीं है तो उसको डैश छोड़ दीजिए, डैश कर दीजिए या नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। अब है कुछ ऑक्यूपेशन, तो आप जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिख दिया, और उसके बाद में आपकी जो इनकम है, इनकम सपोज आपने लिखी 30,000 या 40,000, तो पर मंथ लिखिए उसके अंदर में, राइट। फिर ये जो पैरा 10 आ जाता है, बेसिकली इट इज अबाउट योर एनसीसी ट्रेनिंग। तो एनसीसी ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन आपको इस पैरा 10 के नीचे वाले कॉलम में देनी है। यहां पे टोटल ट्रेनिंग आपने कितनी करी, फिर कौन सा विंग था, विंग मतलब यहां पर सीनियर विंग और जूनियर विंग। डिवीजन आ जाता, सॉरी यहां पे आर्मी विंग, नेवी विंग और एयरफोर्स विंग, एंड यहां पर डिवीजन में सीनियर डिवीजन और जूनियर डिवीजन। एंड आपको सर्टिफिकेट कौन सा मिला हुआ है, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट, और साथ में अगर आप ग्रेडिंग भी डाल देते हैं विथ अल्फा ग्रेड और व्हाटएवर, तो और भी क्लियर होगा। सी सर्टिफिकेट विथ अल्फा ग्रेड, तो जो सबसे अच्छा माना जाता है। तो अपनी एनसीसी की इंफॉर्मेशन आप आराम से क्लियरली यहां पर दे सकते हैं, और जिनका नहीं है एनसीसी वो उसको डैश 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 कर दीजिए। नाउ पैरा 11, पार्टिसिपेशन इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। सो ये एक बड़ा प्रॉब्लम का मतलब आजकल प्रॉब्लमेटिक एरिया बन गया है कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि आजकल के ज़माने के अंदर में जो भी स्कूल कॉलेजेस शहरों में हैं, कई शहरों में तो कोई ग्राउंड नहीं होता, खेलने कूदने की सुविधाएं बहुत कम होती हैं, या फिर जो लोग बच्चे लोग जिस भी शहरों में रहते हैं या अपने टाउन में रहते हैं, तो उनके आसपास में कोई प्लेग्राउंड नहीं होता। तो गेम्स एंड स्पोर्ट की सुविधाएं कम होने की वजह से कई बच्चे होते हैं जिन्होंने कुछ गेम स्पोर्ट्स में बहुत ही कम पार्टिसिपेशन किया होता है इन ए प्रॉपर मैनर। हो सकता है कि दे वुड हैव प्लेड गली क्रिकेट और गली फुटबॉल, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट प्रॉपर गेम वो नहीं खेला होता, तो वो दुविधा में रहते हैं कि व्हाट शैल आई डू नाउ। मैंने तो कोई ऐसा गेम खेला ही नहीं जिसका मैं कह सकता हूं कि आई रिप्रेजेंटेड स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, और कोई आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट जो आपका लास्ट कॉलम आ जाता है। तो वो बहुत परेशान सा हो जाता है वो कैंडिडेट कि मैं क्या करूं। आई विल जस्ट टेल यू उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। जिससे प्रॉपरली खेला है वो तो ऑब्वियसली सारे इंफॉर्मेशन लिख देगा, जो भी गेम्स स्पोर्ट्स उसने जिम्नास्टिक किया है, सॉफ्ट बॉल किया, कबड्डी किया, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वो लिख पाएगा। और कितने ड्यूरेशन से खेल रहा है, मतलब कितने सालों से खेल रहा है, कितने महीने से खेल रहा है, वो आराम से इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे देगा। और रिप्रेजेंटेड स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अगर उसने रिप्रेजेंटेशन कुछ किया है तो यू कैन राइट कि सर रिप्रेजेंटेड माई स्कूल और यूनिवर्सिटी, तो वो आपको क्लियर है। और सिमिलरली अगर आप वहां पर कोई कंपटीशन में खेल के कोई मेडल जीते हैं या आपने कुछ भी अचीवमेंट किया है, तो वो आप लास्ट वाले इसमें लिख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन कम्स कि जिन्होंने बहुत ही कम खेला है या सिर्फ गली क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या इस तरह के गेम खेले हैं, वो लोग क्या करें। तो मेरी एडवाइस उन कैंडिडेट से यह है कि आप जो भी गेम खेले हैं, भले आप अपने गार्डन के अंदर में बैडमिंटन खेल रहे हो या गार्डन के अंदर में छोटे मोटा क्रिकेट ही खेल रहे हो, आप फिर भी उस स्पोर्ट्स एंड गेम्स के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, यहां पर लिखिए। और ऑफ कोर्स आपका यहां पर रिप्रेजेंटेशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सब चीजें तो नहीं होंगी, तो वहां पर डैश कर दीजिए। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट में भी डैश कर दीजिए। बट यहां पर जो भी आपने स्पोर्ट्स लिखे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर लीजिए, सो दैट जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे क्वेश्चन करेगा तो यू आर एबल टू गिव द आंसर इन दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट्स और गेम्स। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। किसी ने लिखा है कि भाई क्रिकेट, अब उसने क्रिकेट तो इतना लेवल का खेला नहीं है, प्रोफेशनल लेवल खेली नहीं है, स्कूल को प्रेजेंट नहीं किया, यूनिवर्सिटी को किया नहीं, ऑफ कोर्स आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट भी नहीं है, तो वो क्या करेगा। तो उसको इंफॉर्मेशन गैदर कर लेनी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं इंटरव्यू ऑफिसर, ओके टेल मी व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द क्रिकेट फील्ड, तो you should be able to say sir 60 yards to or 60 meters to 90 meters. There is no fixed kind of a dimension for the cricket field, but इसके बीच में हो सकता है। सिमिलरली अगर क्वेश्चन आ गया कि आपके विकेट्स के डिस्टेंस कितने होते हैं विकेट और विकेट के बीच में, तो यू शुड बी एबल टू गिव आंसर सर 22 यार्ड्स। तो उस पर्टिकुलर गेम्स स्पोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने में
कोई ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आजकल गूगल में आसानी से मिल जाती हैं। तो थोड़ा सा आप 15-20 मिनट, आधा घंटा अपना बिताइए, इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर गेम स्पोर्ट्स से गैदर कर लीजिए एंड आप उसके बारे में बता सकें, इतनी आपकी कंडीशन हो जानी चाहिए। तो प्लीज राइट वॉट एवर यू आर डूइंग इट, ब्लैंक ना छोड़िए, क्योंकि ब्लैंक अगर आपका जो PIQ रहेगा तो वो इंप्रेशन, एक अलग इंप्रेशन देता है कि आप कुछ नहीं करते, और कुछ नहीं करते तो फिर ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप में इनिशिएटिव की कमी झलकेगी, आप में कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलने की, दैट मीन्स कहीं आप में शायद उतनी करेज नहीं है, या बहुत सारी क्वालिटीज उसके अंदर में मतलब इंडिकेट होती हैं। तो इंटरव्यू ऑफिसर के पास में थोड़ा सा नेगेटिव इंफॉर्मेशन चली जाएगी और आपके लिए वो ठीक नहीं रहेगा। नाउ उसके बाद में आता है पैरा 11 का ही है B, हॉबीज एंड इंटरेस्ट। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक ही लाइन का यहाँ पर आपको जगह दी गई है, आपको क्या लिखना है, हॉबीज एंड इंटरेस्ट। अब ये भी हो सकता है कि कई लोग बोलते हैं कि सर बिफोर आई गो फर्दर मैं आपको हॉबीज इंटरेस्ट का थोड़ा सा डिफरेंस बताने की कोशिश करता हूं, व्हाट इज हॉबी एंड व्हाट इज इंटरेस्ट। सो whenever you have free time and in the free time you want to do a particular activity, वो हमेशा करते हैं, so that becomes your hobby. And in the free time you do certain activity जो आपने सोचा है कि मैं करना चाहता हूं लेकिन हमेशा नहीं करते, दैट मीन्स कभी कभी करते हैं वो वाली एक्टिविटी को, तो वो एक्टिविटी बन जाती है आपकी इंटरेस्ट। तो दिस इज द वे यू शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन हॉबीज एंड इंटरेस्ट, राइट। नाउ कमिंग टू दिस थिंग, जैसे यहां पे कबड्डी लिखा है, हॉबीज एंड इंटरेस्ट, तो क्या आप बोलेंगे ये तो कबड्डी तो गेम है, स्पोर्ट्स है, ये तो स्पोर्ट्स में भी लिखा है, यहां पे भी लिखा है, तो क्या ये सही माना जाए? तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट को जब भी फ्री टाइम मिलता है वो पर्टिकुलर गेम ही खेलता है। जैसे कि आपकी इच्छा होती है कि जैसे अभी टाइम मिला मुझे, तो आपने अपनी फुटबॉल उठाई और अपने 3-4 दोस्तों को बुलाया, अपने छोटे ग्राउंड में चले गए और जाके वहां पे वो फुटबॉल ही खेल रहे हैं। तो अगर वही मतलब फ्री टाइम में आप वही कर रहे हैं, तो इवन गेम्स कैन बी एन हॉबी, ठीक है। तो आप गेम्स को भी हॉबी की तरह लिख सकते हैं, जैसे कि ये कैंडिडेट ने यहां पे लिखा हुआ है। और बाकी तो क्लियर है कि हॉबीज क्या क्या होती हैं, बहुत सारी हॉबीज होती हैं, जिसकी जो है वो पर्टिकुलर अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट लिख दीजिए। एंड ये जरूर आप मतलब करिए, सिर्फ दिखाने के लिए ये काम नहीं करना है। इट इज नॉट फॉर द इंप्रेशन मैनेजमेंट, इट इज फॉर आप जो करते आए हैं वही करिए, क्योंकि उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंटरव्यू ऑफिसर विल आस्क क्वेश्चंस और यू शुड बी एबल टू रिप्लाई कि ये हॉबी आपकी क्यों है। अगर फोटोग्राफी लिखी है तो फोटोग्राफी क्यों करते हैं, सिंगिंग लिखी है तो सिंगिंग करने से आपको क्या मिलता है, लिसनिंग म्यूजिक, लिसनिंग सॉन्ग्स लिखा है तो वो क्यों करते हैं। You should be ready to actually answer on all the hobbies, whatever you have written or interest you have written over there. Now, उसका एक पैरा 11 का C, यहां पे आप देखेंगे पार्टिसिपेशन इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। अब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर में बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं जो अपने स्कूल डेज में आपने की होंगी या कॉलेज में की होंगी। जैसे ये कैंडिडेट ने यहाँ पे लिखा है एंकरिंग, ड्रामा, तो इसको ये चीजें भी आ सकती हैं इसके अंदर में, स्पीच, इलोक्वेशन, डिबेट्स, क्विज कंपटीशन, पार्ट ऑफ एनी सोसाइटीज। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज के अंदर में हर एक कॉलेजेस की बहुत सारी सोसाइटीज होती हैं, ड्रामेटिक सोसाइटी, आर्ट सोसाइटी, इंग्लिश डिबेट सोसाइटी, क्रिएटिव राइटिंग सोसाइटी। तो ये जो भी एक्टिविटी इस तरह की हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी है, नेम ऑफ द एक्टिविटी ग्रुप, और यहाँ पर लिखने का ड्यूरेशन लिखना है एंड अचीवमेंट। तो उसके अंदर मैं करके कुछ नया अचीवमेंट कर रखा है तो वो लिखिए, नहीं तो कम से कम एटलीस्ट जब आपसे क्वेश्चन करा जाए तो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन कि वो क्या आपकी एक्टिविटी थी। नाउ 11C का D, दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ PIQ, जो यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिक ऑफिसेस held in NCC, scouting, sports team, extracurricular group and other fields। तो यहाँ पे मतलब बेसिकली आपने कौन सी रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस अभी तक की हैं
उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी है। तो सबसे छोटी जो पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप मान के चले तो इवन ए क्लास मॉनिटर इज ए पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद में आप और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे कि आप कभी स्कूल के कैप्टन रहे हैं या हाउस के कैप्टन रहे हैं या क्रिकेट टीम के कैप्टन रहे हैं और कोई स्पोर्ट्स टीम के कैप्टन रहे हैं या फिर कोई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के आप इंचार्ज रहे हैं या कोई भी आपने जहां पे काम किया, जहां पे आपको काम दिया गया था और आपको ऑर्गेनाइज करना था, तो उस तरह की चीजें आप यहां पर प्रॉपरली लिखिए। जैसे यहां पे इन्होंने लिखा है स्कूल कैप्टन इन 12th, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, तो ये तो खैर इसने अपना अचीवमेंट लिख दिया है इसके लिए, बट ये बेसिकली स्कूल कैप्टन इन 12th इज द पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसके अंदर में एनसीसी में जो होते हैं उनके लिए, जैसे उन्होंने सार्जेंट रहे हैं, सीनियर अंडर ऑफिसर रहे हैं, या जो भी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां पे उन्होंने लीड किया है वो काम यहां पर लिख सकते हैं। उसके बाद में पैरा 12 आ जाता है, बहुत सिंपल है, यहां तो कोई प्रॉब्लम की खड़ी नहीं होगी। नेचर ऑफ कमीशन, नेचर ऑफ कमीशन इज दो ही होते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन। तो डिपेंडिंग अपॉन आप जिस भी एंट्री के लिए जा रहे हैं वो परमानेंट है या शॉर्ट सर्विस है, तो उसके हिसाब से हम यहां पे आप लिख देंगे। 12 का एक दूसरा बी, 12B इज चॉइस ऑफ सर्विस। इट इज वेरी क्लियर, एनडीए वालों के लिए जो एनडीए में फॉर्म भरा है और प्रायोरिटी जो आपने सर्विस की दी हुई है, फॉर एग्जांपल एयरफोर्स, आर्मी, नेवी एंड आईएनए, तो वही आपको यहां पे भरना है अपनी चॉइस ऑफ सर्विस में। और जो एक पर्टिकुलर जैसे एफ कैट में जा रहा है तो ऑब्वियसली वो एयरफोर्स ही लिखेगा, और अगर जिसने सीडीएस एग्जाम दिया है उसने मतलब आईएमए वाला क्लियर किया है तो वो आर्मी ही लिखेगा, ओटीए किया है तो वो भी आर्मी लिखेगा। तो आपकी चॉइस ऑफ सर्विस बेसिकली आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जो आप जिस पर्टिकुलर के लिए जा रहे हैं वो लिखिए यहां पर। एंड उसके बाद में 13 जो आ जाता है, पैरा 13, नेचर नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड फॉर कमीशन इन ऑल 3 सर्विसेज। ये इसका मतलब है कि आपने एसएसबी में कितनी बार अटेम्प्ट किया है। तो अगर किसी ने नील किया है, एक बार भी नहीं गए हैं, फ्रेशर हैं, तो आप नील कर देंगे। अगर आपने 3-4 बार किया है तो आप उसका नंबर लिख देंगे 4, और उसका डिटेल आपको यहां पर देना है नीचे, सीरियल नंबर, जितनी बार भी आप गए हैं, 4 बार गए हैं तो 4 बार, 1 2 3 4, टाइप ऑफ एंट्री क्या थी, एसएसबी नंबर एंड प्लेस, एंड डेट, आप कब गए थे, डेट अगर आपको याद है तो डेट लिखिए, नहीं तो कम से कम मंथ जरूर लिखिए कि किस मंथ और ईयर में गए थे, एंड चेस्ट नंबर स्ट्रोक बैच नंबर। तो ये आपको डिटेल यहां पर दे देनी है लास्ट वाले के अंदर में। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है कि आप उसमें स्क्रीन आउट हो गए थे या कॉन्फ्रेंस आउट हो गए थे, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। हालांकि इंटरव्यू ऑफिसर ड्यूरिंग द इंटरव्यू ही और शी में आस्क सच क्वेश्चंस, राइट? So this is the way you have to fill your PIQ form. Once again I am reiterating, it is a very important document. तो जब आप फॉर्म ये भर रहे हैं, डेलिब्रेट करिए और प्रॉपरली सारे इंफॉर्मेशन दीजिए, और जो भी आप लिख रहे हैं इस फॉर्म के अंदर में, उस फॉर्म के बारे में और जो भी लिख रहे हैं उसके इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए. यू शुड बी एबल टू आंसर ऑन दोस whatever you have written here. I hope you got all the points what PIQ is to be filled up. If there are any question, you can always give me a call or message me. I will try to clear your doubts. Thank you.